Good morning, Narinder ji. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हो See हाउ you इज after a long एवरीथिंग time. आप भी इट्स वेकेशन पे, मैं भी ऑफिस वेकेशन, आप भी वेकेशन पे. तो इट्स लॉन्ग टाइम समर टाइम ऐसे ही होता है. कोई ना कोई बच्चों के साथ प्रोग्राम बन जाता है, कभी अपने आप बन जाता है. So हाँ it's जी nice to spend time, and it's a good weather. Weather is also, you can travel. Not too many winter stuff to carry. Like it's easy to travel. ये भी तो है. Otherwise winter में थोड़ा different हो जाता है. But it was good दैट्स that I ट्रू was या here. Yeah, we went for the whole family and came back last Monday actually, 1 week ago. तो हाँ जी, तो एक हफ्ता हो गया हमको वापस आए हो. या आपको भी around the same हाँ time जी you were there, you were out या also या same time. I think you came back the same time too. So यही होता है vacation में. So we schedule करना, then I had to come back and get back into the you know mode of things. वो भी ठीक. राइट राइट या तो I mean we missed everybody. आपने भी, आपको भी मिस किया. आपको एक दो हफ्ते आपको मिस करना पड़ा. Like about four programs I had to miss, but I felt very you know डिफिकल्ट लगा कि भाई ये मैं कभी करती नहीं हूँ, पर इस बार ज़्यादा ही हो गया. ओके, जहाज का स्केड्यूल ऐसे था. सो कुडंट हेल्प इट. यू नो a plain schedule and going with everybody, the family, it became a little um, challenging. But anyway, we had at the end of the day, it was good. Traveling या is, it was fun this time. Not too bad. I had a little problem in the beginning, but it was okay. Traveling maybe. But anyway, आज का subject बड़ा. Good morning, friends. Thanks for joining. I have Sheshi ji from Sheshi Dhanda ji, and Avrama ji हैं, अभी कमलेश जी भी हैं. Thank you so much for joining, and good morning to all of you. And we have Guru Narinder ji with us. As you all know, that he's been coming to our program for more than 2 years, and our program is on air for exactly 3 years and 3 months. So I just want to tell just a little bit about this program before we start Narinder ji ke sath. Okay, this is all started with good intentions, with a lot of friends. They helped me a lot. पर आपने सबने अपने काम शुरू हो जाते हैं, सब चले जाते हैं. Then I was left all alone. And as you all know, there are expenses involved in this program. It's not a free thing. It might be. I'm doing this like for the community, and I'm doing every service. But to get this thing on air, I have to get the flyers made. I have people working for me in India, one working in Pakistan. I have to do this YouTube. I mean, YouTube का भी है, वो तो free है वैसे. But I'm talking about Facebook, and then you have this Zoom, then you have all these things, and I have to connect, get the flyers made on time. The program then goes to YouTube, then it goes to Instagram, then it goes to Threads, then it goes to and something else also. Like I'm getting um, yeah, a couple of four different things. So what I'm trying to say is that community service had, but I'm wholeheartedly spending quite a bit of money to get this program running. It's not that it's community service, yes, but it is getting to be very expensive for me to run this program, because monthly I have to pay the people who are working for me. They are working in India. Even then, India maybe things have, like India and Pakistan, things have gone up. Young people are very experienced. They're very just like over here. So they're as smart and they're good in all these things. So a flyer banana time sir. Sometimes I find that people are a little bit demanding. They don't understand that I have to communicate with people back home. It's 12 hours, 10, 12 hours difference. The flyer ठीक time नहीं बना कभी. Right, they want the thing to be going to YouTube में भी जल्दी करो. Send me the pictures, send me the recording. कब जाएगा YouTube में, कब ये होगा. हमको ये हमारी ये नहीं फोटो, हमारी ये नज़र नहीं ठीक आया, हमको ये नहीं ठीक हुआ. So this is also my time also. Like I'm spending a lot of time. Of course, I love this program. It's my baby, yes. But one should also try to give me a little bit leeway that alone running this program is not that easy. And coming and being dedicated on this program 3 times a week, it was 5 days a week until for 2 years, until last year. Then I said, let's make it 3 days.
So just be patient. Sometimes things do happen. Sometimes people are, we can be a little late, or we can be transferring the program, or doing things, sending to YouTube. And when I'm doing the program, people are texting me, aise karo, aise karo. It is little difficult to do all that, especially when you're running and you're talking to the people, talking to your friends who are there, you're welcoming everybody. थोड़ा challenging हो जाता है. But nevertheless, we are doing good, and I'm getting very good feedback. And I'm also planning to do some, people have approached me to do some medical programs and all that stuff. So we're going to get into that also, like timely topics about, like we have parents living in the house, unke liye kuch dekhbhal karna, ye karna. So those kind of topics we're going to bring up, and I have people who are going to be coming. So I just want to let everybody know that these things that we are planning to do that. So it'd be nice if you could bring your friends, spread the word to please join this program. So the more people we have, the more medical people can come and explain everything to everybody. That's the goal. Jitne log aayenge, sunenge, is going to benefit them, because they're going to give very good advice about certain things. So that's why I'm just letting all of you know that we're going to be doing those kind of programs. And आपकी हेल्प चाहिए, आपकी फ्रेंड्स को लेकर आओ, अपने relatives को लेकर आओ, people who all can, they can benefit from these things. And that's the kind of programs that I want to bring in our program. We have, of course, we have entertainment, we have शुक्राना, then नरेंद्र जी आते हैं, एक और भी मिस्टर भूपिंदर जी भी आते हैं. We have a lot of friends teaching us a lot of things. I want everyone to benefit from the Narendra ji's knowledge is so great. He's so knowledgeable, and he Bhagavad Gita ke dekho, Minneapolis mein bhi gaye, unki conference thi, and he goes to so many places over here. So when he comes and tells us things, he's very knowledgeable. We should appreciate what he does. He takes the time and comes here. Most of the people who come, they take the time and come here. So I want a lot of people to come, more people to come. If you have friends, please tell them to join our programs and take benefit, learn. And you at the end of the day, everybody learns something. Kuch to seekhta hi hai. So that's what we want. So, and also, like, I'm going to get different people, and we're going to try to make this program. And also, I want your feedback. If there's anything that you like us to do, me to do, or whatever, please do let me know. I always ask everyone, your feedback is very, very important to us, all of us. So I want to welcome Usha ji bhi aayi hain abhi. Thank you so much for joining. And now आज का टॉपिक जो है, नरेंद्र जी ने हमें डिस्कस किया था अभी, भवसागर. भवसागर का मतलब क्या है, और कैसे इसको उतारना है या डालना है, जो भी है, whatever the main thing is, what is the meaning of this thing, and how do we do this thing, benefit from it, or whatever the main things are. Narinder ji is going to explain further. Welcome, Narinder ji. Thank you so much for joining with us. Dil Diyan Galla. Thank you. First of all, I want to compliment you that you have been running this program with complete dedication and experience, and it is not easy. There are a lot of personal and economic commitments, and you have been very successful. There's a lot of audience now attached to this program, and we are all with you. We are with you, behind you, and around you. Thank you. Thank you. Pray, the question you asked, before I do that, we will do some prayer for the world peace. Oh, yes, that's true. It's been a long After time. that, we'll take up this topic. Om Vishwani Deva Savitar Duridani Parasuva Yad Bhadram Tanyasuva Om Harinyagarbha Stamratagri Bhutasya Yata Patireke Asit Pradadhar Prithvi Dhyamute Mam Kasmai Devaya Havisha Vidhem Om Ya Atmada Balada Yasya Vishwa Upasate Parsham Yasya Deva Yasya Chaya Amritam Yasya Mrityu Kasmai Devaya Havisha Vidhem Om Brakatunda Mahakaya Surya Koti Samaprava Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकैनाथं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वाग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। By the invocation of the divine mantras, we are seeking the blessing of the Almighty for the world peace. There are a lot of things going on, a lot of fighting, cruelty all around, and only the Almighty, the Creator, can help. Men, they are so busy in killing each other. So with these, the prayer is very profound, with inhibited in these mantras. Yes, And agree. so now going back to your question, कि ये भावसागर क्या होता है? हम कहते हैं हे वाहिगुरु, हे प्रभु, हमें भावसागर से पार उतारो। तो पहले तो समझे कि ये हम प्रेयर में क्यों कहते हैं और ये भावसागर होता क्या है और तैर के जाना कहाँ है? आप हम कहते तो हम इस भावसागर से पार उतारो, पार उतर के कहाँ जाना है आपने पता भी है आपको? सो इट्स जस्ट ए सेल्फ इंक्वायरी कि हम जो चीज कहते हैं उसका मतलब क्या है। तो भावसागर का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। हमारी जो बॉडी है हमारी, इसको हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि इट इज मेड ऑफ फूड, और फूड के 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई, जिसको स्पेस भी कहते हैं। इनसे शरीर बना हुआ है और ये पल पल छिन छिन चेंज हो रहा है। कुछ भी आप ना करो आप चेंज हो जाओगे, क्योंकि जो मटेरियल, जिस मटेरियल से हम बने हुए हैं वो चेंज हो रहा है। तो उसमें आपकी कोई इनपुट नहीं है। सृष्टि का नियम है, प्रभु का नियम है, वाहिगुरु का ये नियम है कि जो चीज बनी है वो खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती है। ये कंटिन्यूटी इज द लॉ ऑफ दिस क्रिएशन। ये कभी नहीं रुकती, सृष्टि कभी नहीं रुकती। हम कहते रहते हैं कि डूम्सडे आ गया, फलाना डे आ गया, वो मैन दे क्रिएटेड देयर ओन टर्मिनोलॉजी। ये ईश्वर की सृष्टि कभी नहीं रुकती, इसमें न्यूनेस आती रहती है, आती रहती है। अब देखो 4 सीजन आते हैं, तांडव नृत्य होता है आपके बैकयार्ड में, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहता, फिर सब कुछ आ जाता है। तो हम देखते तो हैं, पर ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी है। बड़ी चीजें, बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन, आप अंडरस्टैंड हम करते हैं इस संसार को, तो वो ऐसे की ऐसी निकल जाती है। आपको पता कि ये टेम्परेरी है, इट इज अ टेम्परेरी। दुख भी टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है। द सीक्रेट इज स्टे बैलेंस।
अगर आप बैलेंस रहोगे तो यू विल बी ऑल राइट। अगर आप सुख में सुखी हो गए बहुत ज्यादा, तो बी रेडी टू बी सैड नाउ, क्योंकि इट विल कम। तो भव सागर, एंड देन दीज आर दिस इज 5 एलिमेंट जिससे शरीर बना है। इसके अंदर इमोशनल बॉडी है हमारी, इसी शरीर के इस हड्डियों के ढांचे के बीच में एक इमोशनल बॉडी है, वो है आपका माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। Oh yeah. ये, हाँ, ये 3 चीजें जो हैं वो उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें सारी इमोशंस आपकी भरी पड़ी है। तो इसी के ऊपर ये भाव सागर है। देखो, इसको समझने के लिए पहले हम भाव सागर हम आप क्रिएट करते हैं। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, वाहे गुरु की बनाई हुई दुनिया में कोई नुक्स नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। हम कहते रहते हैं लेकिन कोई नुक्स नहीं है। नुक्स इसलिए है कि हमने जो सृष्टि के नियम हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, उनको अब्यूज किया है, मिस यूज किया है और राइटली अप्लाई नहीं किया। तो हमने खुद अपने जो दुख सुख हम क्रिएट करते हैं। प्रभु की दुनिया में कोई सुख दुख नहीं है, वहां बिल्कुल शांति है। तो इस चीज को हमने अब समझना है कि ये 8 जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये 8 एलिमेंट्स में जान नहीं है, मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तब आती है जब जीवात्मा, स्पिरिट, इस बॉडी में एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, जिसको डिवाइन एनर्जी कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा का मतलब है कि जो प्रभु का एक अंश है। वो जब इलेक्ट्रिक प्लग उसमें लगता है तो ये बॉडी हिलती है, जो कि बच्चे जो है पैदा हो जाते हैं, हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एनर्जी चली जाती है एट ए सर्टन टाइम, तो ये पूरी की बॉडी, पूरी बॉडी वहीं पड़ी होती है, लेकिन इसमें मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये तो एक सृष्टि का नियम है। तो इसमें अब जो भावसागर की बात जो आपने पूछी है, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। भावसागर क्रिएट ऐसे होता है कि हमारी जो इमोशनल बॉडी है, जो मैंने आपसे शेयर किया कि 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, आपका माइंड है और आपकी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, Mm-hmm. एंड आपकी ईगो है, जिसको हम अभिमान कहते हैं। एक है स्वाभिमान, एक है अभिमान, एक है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक है ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज गुड, कि Mm-hmm. आई एम डिवाइन, मेरे अंदर ईश्वर रहते हैं, मेरे हृदय में वाहे गुरु वास करते हैं। अगर आपकी पक्की कन्विक्शन है, जिसकी भी, जिसने चीज की प्रैक्टिस की है, उसका जो बॉडी है वो टेम्पल बन जाती है, वो गुरुद्वारा बन जाता है। फिर उसको गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इस अवेयरनेस से जीना पड़ता है कि ये गुरुद्वारा है, मैं चलता फिरता गुरुद्वारा हूँ। तो जो आप गुरुद्वारे में नहीं करते, मंदिर में नहीं करते, तो इसके साथ ही ना करो, है। It's तो ये good. कॉन्सेप्ट, ये एक थॉट है, थॉट है। Mm-hmm. तो अगर ये भाव सागर हम क्रिएट करते हैं ऐसे कि माइंड का जो फंक्शन है वो है टू प्रोड्यूस थॉट्स, और कुछ नहीं इसका मतलब। इट इज ए ऑर्गन मशीन। हजारों लाखों थॉट्स आती हैं आपकी माइंड में। बैठे बैठे आप चंद्रमा में पहुंच जाते हो, बैठे बैठे आप इंडिया पहुंच जाते हो, किसी को देखते दुखते भी नहीं, लेकिन माइंड घूम रहा है। यहाँ भी बैठे हैं, प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फिनोमिनल एस्पेक्ट है कि बैठे बैठे हम सारी सृष्टि में घूमते हैं। तो जब हम इधर उधर देखते हैं चीजों को, तो उसके साथ हमारी कई चीजों के साथ अटैचमेंट हो जाती है। एक बार हमने एग्जांपल दी थी कि आप अपनी कार में बैठे हो, कार चला रहे हो, लेकिन एक कार आती है, जूम करके आपसे आगे निकल जाती है। वो एक्सपेंसिव कार है, उसका डिजाइन बड़ा अच्छा है, पिकअप बड़ी अच्छी है। तो आप, जिसने भी देखी, मैं आपका इसलिए कह रहा हूँ कि जस्ट फॉर Right, right. कम्युनिकेशन, No, no, I know. नो No, पर्सन। I know, I understand. तो वो जब ऐसा विचार मन में आता कि मैं तो कार में बैठा हूँ, मैं तो कार चला रहा हूँ, लेकिन मन में एक इच्छा पैदा होती है कि मैंने भी ऐसी कार लेनी है। तो लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन मेरे माइंड ने शरारत की
कि भाई ऐसी भी हो सकती है, ऐसी आप भी ले लो। तो ये किसने किया? मैंने किया। वो जो कार चला के चला गया, वो तो वहां पे बात भी नहीं उसने की। तो मेरी मन में ये इच्छा आ गई कि ये मेरी कार मुझे मिलेगी चाहिए। तो अब यह इच्छा जब पैदा होती है, डिजायर इज इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन। Yes. जो भी डिजायर है आपकी, इफ द डिजायर इज वेरी स्ट्रांग, तो आपका एक्शन में बदल बदल जाती है। तो जब आप एक्शन लेते हो तो उसमें दो ऑप्शन है। या तो वो चीज़ आपको मिलती है, अगर आपका रिसोर्सेज हैं, यू गेट इट। अगर नहीं मिली तो नो आई एम सैड। मिल गई तो मैं खुश, नहीं मिली तो मैं सैड, मैं दुखी। तो ये किसने क्रिएट किया? मैंने, मेरे माइंड ने। किसी ने कुछ नहीं किया। मैं बैठा बैठा ही आप पे सुखी हो गया, बैठा बैठा आप पे दुखी हो गया। Hmm. और अगर मुझे वो चीज मिल गई है तो मैं रुकता नहीं। फिर मैं और इच्छा पैदा होती है कि भाई और मैं रहूं, क्योंकि इट वाज अ सक्सेस। सो नाउ अगेन इट इज मल्टीप्लाइड। आपको या तो मिली या नहीं मिली, मिली तो सुख, नहीं मिली तो दुख। तो नाउ वी आर क्रिएटिंग इमोशनल ओशन, जिसको भवसागर कहते हैं। कि इसमें इतना हम उलझ जाते हैं कि हाथ पैर कुछ नहीं चलते। Uh, जिस और ये नियम है सृष्टि का कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। नेचर का रूल है कि वो एक चीज आपकी ऐसे रोके रखेगी कि सारी उम्र आप कहते हो भाई ये हो जाता तो अच्छा था, लेकिन होती नहीं है। सृष्टि का नियम है कि आपकी 100% डिजायर्स पूरी नहीं होती। तो अगर 60% पूरी हो गई, 40% पूरी नहीं हुई, तो 40% तो दुख है। वो तो दुख है। इमोशनल एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। इट कुड बी ए पर्सन। ये जो डिजायर है ना, मैं तो ये वैसे एग्जांपल दे दी। इट कुड बी ए पर्सन, कि किसी पर्सन को हम लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, वो हम ही करी जा रहे हैं। 5 साल के बाद वो फिर फ्रेंड बन जाता है, 2 साल के बाद वो फिर एनिमी बन जाता है। वो, उसकी शक्ल वैसे ही है, वैसे ही वो कपड़े डालता है बंदा। लेकिन मैंने अपने माइंड में डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करके अपना मैं ताना बाना बुनता रहता हूँ इमोशनल, और उसमें जीना शुरू हो जाता है। तो उससे जैसे किसी को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 40 years की, कैपिटल इम्प्रिजनमेंट। पहले तो वो जो कैदी होता है, प्रिजनर होता है, वो बड़ा तड़पता है कि ये कहाँ फंस गया, कि या सूर्य की रोशनी नहीं है, छोटा सा कमरा है, रोटी वो नीचे से दे जाते हैं। लेकिन उसको फिर बाद में पता चल जाता है कि ये तो एक दिन की तो बात तो है नहीं, मैं तो यहाँ 40 साल रहना है कम से कम। तो वो एडजस्टमेंट करनी शुरू कर देता है, और एडजस्टमेंट के अंडर वो कई चीजें करता है। कभी उसको मंदिर बना देता है चीजें रख के, कभी गुरुद्वारा बना देते हैं, फिर शब्द बोलता है अंदर ही, भगवत गीता का पाठ करता है। तो उसको ये याद भूल जाता है कि मैं तो जेल में हूँ, ना ये मंदिर ना ये गुरुद्वारा हो। ये तो मैंने बना लिया है, लेकिन असली तो जेल में, बाहर तो जा नहीं सकता। लेकिन एक दिन आता है कि वो जेलर उसकी सारी चीजें देखता है कि ये बंदा रिलीजियस हो गया, अब ये बाहर जाके क्राइम नहीं करेगा। तो अंडर द क्लीमेंसी लॉ उसको प्रेसिडेंट के अपील करते हैं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो वो आके कहता है कि भाई साहब आप बाहर निकलो, मैंने ताला खोल दिया है आपकी जेल का, तो नाउ यू आर फ्री मैन। वो कहता है कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैं बाहर जाके बाहर जाके क्या करूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, एंड मैं बड़ा सुखी हूँ, आप मेरे मुझे भोजन देते हो, रात दिन देते हो, और मैंने बड़ा सुखी हूँ। तो ऐसे ही जैसे उसको जेल से प्यार हो गया है, ऐसे ही हमें सफरिंग से प्यार हो जाता है। हमारी सफरिंग, हम पता है हम सफर कर रहे हैं, लेकिन सफरिंग से प्यार है तो हम उसको छोड़ते नहीं, उस सफरिंग को हम छोड़ते नहीं। तो वो आपके बस की बात नहीं रहती, क्योंकि आप इच्छा के ऊपर इच्छा के ऊपर इच्छा आप क्रिएट करी जाती हो वेब, वेब नेट। वो मकड़ी के जाले की तरह हम उसमें फंस जाते हैं। तो उस मकड़ी के जाले को ही, जो इच्छाओं के इमोशनल सेंटिमेंट्स के थ्रू बनाया है, ताना बाना बुना है, उसी को भाव सागर कहते हैं। वो आपसे तो कुछ होता नहीं। तो फिर हम ईश्वर की तरफ देखते हैं कि प्रभु
मेरे से तो हो ही नहीं रहा, ये तो और बड़ा हो रहा है। तो जितनी ये इमोशनल डिस्टरबेंस हमारे शरीर में रहते हैं, ना तो हम हेल्दी हैं, ना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, नींद आप बंदे को आती नहीं है, उसके विचार सारे बदल जाते हैं, अच्छे भरे घरों पे रह के वो दुखी है, सारी चीजें उसके पास है लेकिन दुखी है, क्योंकि उसी को भावसागर कहते हैं कि इमोशनल डिस्टरबेंस इतनी है कि उसके बाद इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, हिज और हर जो भी है। तो इसको हमने हमने समझना है। हम जो ईश्वर से कहते हैं, वाहिगुरु से कहते हैं कि हे वाहिगुरु जी, ये जो मेरा भावसागर है मुझे इससे पार उतारो, क्योंकि उसको नींद नहीं आती, he cannot sleep, he cannot sleep, और उसका सारे का सारा जो खाता है वो पचता नहीं। और फिर क्योंकि फूड जो है, अभी आवर बॉडी इज मेड ऑफ फूड, Good. तो ये सारी चीजें इंटरट्वाइन है, इंटरकनेक्टेड है विद द इमोशन। तो जिसकी इमोशनल बॉडी, तभी कहते हैं इट इज द माइंड ओवर बॉडी। Right. अगर आपका माइंड अच्छा है, स्टेबल है, पीसफुल है, हेल्दी है, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। Mind. Yeah. हम कहते हैं, राइट, शेक्सपियर ने भी कहा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। उसका मतलब यही है कि अगर माइंड आपका ठीक है, शांत है, तो एक ऑरा होता है, वो आपके चेहरे पे आ जाता है, जिससे आप बात करोगे उसको बदल लोगे, लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो आपके कांटेक्ट जैसे Hmm. ड्रग डीलर्स हैं, उनका भी ऑरा है, उनके उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई आ जाए वो ड्रग डीलर बन जाता है। अगर रात दिन उसके उस बंदे के साथ रहा जाए, Yes. या तो ये जो है ना, इसको कहते हैं भावसागर, इमोशनल इंटरट्वाइन वेब, जिसमें हमने बनाया है। मकड़ी की तरह, देखो मकड़ी होती है, स्पाइडर, वो कोई मटेरियल बाहर से नहीं लाती है, तो एक जगह वो कनेक्ट करके देन शी स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। और उसका देखो स्ट्रक्चर, उस जो वेब का है, इट इज मार्वलस डिस्प्ले ऑफ इंजीनियरिंग। That's कोई true. कोई टोल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, उसने खुद ही क्रिएट कर दिया। हमारा भी यही हाल है कि इमोशंस का जो वेब नेट हमने क्रिएट किया है, उसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हम ऊपर हाथ उठाकर अल्लाह से, प्रभु से, ईश्वर से, क्राइस्ट से, जीसस से कि हे प्रभु, मैंने क्रिएट किया, मैं ही फंस गया, मेरे से मैं तो निकल नहीं सकता, तो इसलिए आई एम हेल्पलेस, प्लीज हेल्प मी, Hmm. प्लीज हेल्प मी। तो इसको कहते हैं भावसागर। लेकिन अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट मल्टीप्लाई योर डिजायर्स, निप द इविल इन द बड। Hmm. जितनी डिजायर्स आपकी आती जाएंगी, एक डिफरेंट फॉर्म एंड शेप्स, उसको एनालाइज करो कि इसका जिंदगी के साथ कोई मतलब है। देखो इतने इतने बड़े हमारे मकान सभी के, राइट, सोते आप कहाँ, एक कमरे में, कमरे में पड़ा क्या हुआ है, एक पलंग है, बेड है, राइट, दैट इज व्हाट वी डू। रसोई में आपने खाना वाना बना लिया, बाकी का सारा जो डिस्प्ले है, उसका आपको फिजिकल कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब उसको हम सजाने में लगे रहते हैं। तो वो सारी सारी इच्छा है, वो हम दूसरों के लिए सजाते हैं, अपने लिए नहीं सजाते। ये जो बड़े बड़े घर हैं, ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, आपकी नेसेसिटी के ऊपर नहीं है वो। तो अगर जो लोग इस बात को, इस सीक्रेट को समझते हैं, सीरियसली लेते हैं, वो इच्छाएं जो हैं दूसरों के लिए नहीं जीते, अपने लिए जीते हैं। सो दे मिनिमाइज योर डिजायर्स। Hmm. तो जब डिजायर मेरी मिनिमाइज है, तो उसमें मेरी ऑप्शन मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर मेरी डिजायर, पहले मैंने 100 क्रिएट करता था एवरी डे, अब मैं 10 करता हूँ, तो जो 10 में या तो 8 मुझे मिल जाएंगी, 2 रह जाएंगी, या 8 नहीं मिलेंगी, 2 मिल जाएंगी, राइट। तो वो ऑप्शन बड़ी कम हो गई आपकी, वो भावसागर आपका सूख गया, क्योंकि आपने इच्छा कम कर दी, राइट। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं 100 इच्छाएं हैं,
डिजायर्स हैं वो अगर पूरी भी होती हैं तो देन अनदर 200 आर ऑलरेडी देयर। जो मिल जाता है उसमें एक ही वन नाइट आप यार यू आर हैप्पी, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि नई डिजायर आ गई है। सो दिस इज कॉल्ड भाव सागर। और इसमें लोग बड़े दुखी हैं, इमोशनल सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई नहीं करता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, मेरी है। शरीर ये किसका है? मेरा है। इसका ध्यान किसने रखना है? मैंने रखना है। गुरुजन, वाइज पीपल, दे कैन गिव एडवाइस, बट करना तो मुझे है, करना तो मुझे है। तो इसको कहते हैं कि ये जो भवसागर है, ये प्रभु मुझे पार उतारो। तो प्रभु हंसते हैं पहले कि बेटा मैंने तो कोई क्रिएट किया ही नहीं, ये तो तेरा अपना ही क्रिएट किया हुआ है। सो इफ यू रीएडजस्ट योर लाइफस्टाइल एंड गो, हम कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बट वो हम जीते नहीं है। हम हाई लिविंग में सिंपल थिंकिंग है ही नहीं हमारी, वो पैरेलल है हमारी। होना चाहिए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग तभी होगी इफ यू मिनिमाइज योर वांट्स, यस, तभी सिंपल होगी। और जब सिंपल होगी, लिविंग सिंपल है, तो दूसरों का जो रिवर्स इफेक्ट है वो ये है कि थिंकिंग आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि हाई थिंकिंग के थ्रू आप कर रहे हो। कभी इसका जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेट मी एडजस्ट इट, जो कर लिया कर लिया। नो, लेट मी स्टॉप फ्रॉम दिस रैट रेस and live my life the way it should be, as had been directed in Guru Granth Sahib, Bhagavad Gita, कुरान में है, बाइबल में है। सबकी एट दैट लेवल सभी एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सिख कहते हैं, मुस्लिम, उन्होंने अपना ही बना लिया हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट्स जो हैं, जो जिन्होंने सृष्टि को गाइडेंस दी है, वो एक ही बात कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। तो हम नहीं मानते। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भाव सागर को, जिसको हमने क्रिएट किया है, दिस इज नेट ऑफ द स्पाइडर, वी आर द स्पाइडर, वी आर क्रिएटिंग द नेट। तो मुझे नेट क्रिएट नहीं करना चाहिए थ्रू माई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डिजायर्स। So nip the evil in the bud, reduce your desires, and the reverse effect is the moment I reduce my desire, immediately the peace follows. Emotional disturbance दूर हो जाता है। देखते तो हम कहीं जाते हैं, राइट, किसी पार्टी में जाते हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल टू मेक द पॉइंट क्लियर। किसी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में गए तो थे हम एंटरटेनमेंट के लिए, हंसने खेलने के लिए, मीट एंड डील। लेकिन वहां से कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम नाराज होके आ जाते हैं। ये तो उल्टी बात हो गई, गया तो मैं खाने खाने किसी ने कोई रिमार्क दे दिया कि आपकी साड़ी ठीक नहीं लगती, मुझे कह रहे आपका सूट ठीक नहीं है। तो मैंने ना तो वहाँ खाना खाया, ना मैंने एंजॉय किया। वो जो था, मैं कार में बैठ के घर ले आया। ऐसी जिंदगी बीत रही है, ऐसी जिंदगी। तो इसी को कहते हैं भाव सागर। तो भाव सागर को, लेट मी समराइज इट, कि भाव सागर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ योर डिजायर्स। ये वेब है, वेब नेट है। नाउ द क्वेश्चन इज हु क्रिएट्स? आई क्रिएट। सब अपना अपना क्रिएट करते हैं, इसमें देयर इज नो ब्लेम कि उसने कर दिया, इसने, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। ये बॉडी किसकी है? मेरी है। फिजिकल बॉडी भी मेरी है, इमोशनल बॉडी भी मेरी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी ठीक रखूं? मेरी। मैं अपनी इमोशनल बॉडी ठीक रखूं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी। तो वर्क स्टार्ट्स विद मी। आई हैव टू टेक एक्शंस, डूज एंड डोंट्स। जो नहीं करनी मैं ना करूं। पर लेकिन ये ओवरनाइट होती नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पहले तो नॉलेज चाहिए कि भाई ये ठीक बात है जो कह रहे हैं, देन आई हैव टू सिंसियरली फॉलो दैट एडवाइस, जिसको अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन
Yeah. परफेक्ट परफेक्ट किसी भी चीज का हम प्रैक्टिस करें हम में वो चीज आ जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है पर्सनैलिटी। तो जो आपने पूछा था, आई कवर्ड दैट सब्जेक्ट, भावसागर होता क्या है। Listen, नरेंद्र जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ. Is this part of ego, being ego? हाँ It's जी नहीं, it's part उसमें of it, ऐसा right? Ego भी. वो जो हाँ जी वो ऐसे है कि हमने भी कहा जब डिस्कस देयर आर टू बॉडीज, वन इज द आउटर फ्रेम, वन इज द इनर। तो आउटर फ्रेम में तो हम शीशे में देख लें हम कैसे लगते हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, छोटे मोटे हैं, कैसा कलर है, उसी को देखते रहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हम रहते हैं जिसको इमोशनल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। वो तीन चीजों से है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। तो जब एक थॉट आती है माइंड में, प्रोसेस ऐसे है, व्हेन देयर इज अ थॉट इन द माइंड इट गोज टू द इंटेलेक्ट, चैनल है जो आपकी बुद्धि है, सोच है, उसमें जाती है। तो उसमें अगर आप हमारी इंटेलेक्ट जो है वो जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है, जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ परमात्मा है, डिविनिटी के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर ये जो इच्छा है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रभु के साथ। फिर आप प्रार्थना करनी शुरू कर देते हो हर चीज में, हे प्रभु आप ही हो। तो आपकी ईगो उसमें आती नहीं है। लेकिन जब ये यही थॉट अगर ईगो में घुस जाए तो नाउ वी क्रिएटेड Yeah. द किंगडम ऑफ आईनेस इट इज कॉल्ड। जो हमारा अपना होता है, हम अपनी क्रिएट करते हैं आईनेस की, कि ये मेरा मकान, हम आई कहना शुरू कर देते हैं, मेरा मकान, मेरी कार, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे बच्चे। तो इतना बड़ा आई किंगडम हो जाता है आईनेस का। तो दैट किंगडम, उसमें सारा सुख दुख है, क्योंकि उसमें इच्छा पूरी होती नहीं है। 50% 40% पूरी होती है, बाकी की ऐसी की ऐसी। किसी को भी पूछो आप, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी भी 20% रह गई हुई है। ऐसे दैट इज आई वी हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री कि भाई इस संसार में जीना तो पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जीवन को जहर ना बनाना, लेकिन नहीं तो पीना पड़ेगा। तो अपनी जो इमोशनल लेयर है उसको शांत रखना, उसको टिल्ट कर, तभी उसमें आ जाते हैं ये सारे शब्द है, भगवत गीता है। इधर ध्यान आपका चला जाए तो वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर मैं चीजों के पीछे भाग रहा हूँ उसमें तो फिर वेब है, वो भाव सागर है, नींदें चली जाती हैं, सेहत चली जाती है, सफरिंग शुरू हो जाती है, मूड हर इतने आपने देखे हैं कई लोग अभी हंस रहे हैं, अभी रो रहे हैं, अभी रो रहे थे अभी हंस रहे हैं उसी टाइम, बिकॉज दे आर सो डिस्टर्ब, Yeah. सो डिस्टर्ब। Yeah. तो वो कोई जीना थोड़ा, वो फिर ये गाना आ जाता है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। Yeah. जीवन अगर आप जहर बनाओगे इसको तो भाई साहब पीना पड़ेगा आपको। तो उसी को भाव सागर कहते हैं। तो इसके बचने का यही एक इलाज है कि मिनिमाइज योर वांट्स, योर डिजायर, Yes. एंड बिकॉज जब वांट्स मिनिमाइज होती हैं तो आप पीसफुल बन जाते हैं। आप देखो हम वेकेशन पे जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। होटल किसी का होता है, हमने कहा कि $1,000 पर नाइट के होटल में हम रह रहे हैं, तो होटल उनका है, फूड वो देते हैं, उसमें इंक्लूड है। तो यू हैव नो वरी, आपकी चादरें बदल जाते हैं, सब चीजें साफ होती हैं नेक्स्ट डे जब वो वापस आते हैं शाम को। एंड आप अपना जो घर है वो उससे भी बड़ा होता है, उसमें ज्यादा लग्जरीज है, लेकिन वेकेशन पे जाके आप खुश हो जाते हो। और एक घर आके द होटल मोमेंट में एक कमरा बड़ा मिलेगा, बाथरूम एक होगा, किचन जो लिविंग रूम, उसको बस अच्छा लगता है, बालकनी हो गई, ये हो गया, था नहीं, कम बैक होम इट्स 5 और बेड, उस ये बेडरूम, 3 बाथरूम, ये भी है, देन यू नो, आई नो इट्स जस्ट माइंड की, ये सब माइंड का है खेल, माइंड 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 का माइंड का, खेल है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। ये माइंड को मैनेज करना
there is a technique which is called meditation. Hmm. आप ये जो हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इसमें हम कैसे जो बोलते हैं, इसमें है प्राण शक्ति, राइट, लाइफ फोर्स। और लाइफ फोर्स क्या होती है? सांस लेना। अगर सांस किसी का रुक जाए तो वो तो क्या, राइट। तो सांस लेना और सांस निकालना, इसको कहते हैं लाइफ फोर्स, राइट। अब इस माइंड को मैनेज करना, इट इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। लाइफ फोर्स को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। प्राण मीन लाइफ फोर्स। Life force. इसको कैसे मैनेज करना है, राइट। जो सांस आप हम लेते हैं, देखो, अगर ये वेरी गुड एग्जांपल है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने 2 बिलियन सांस लेने हैं, हम लेते हैं ना ये सांस, इनहेल एक्सहेल, राइट। फर्स्ट करो उसने इनहेल एक्सहेल सारी जिंदगी में जितनी देर इस ग्लोब पे रहना है, 2 बिलियन उसने ये एक्शन करना है, ऑटोमेटिक है, राइट। तो जो 2 बिलियन है, कभी कहते हैं कि डेथ डे इज फिक्स। हम कहते हैं द मोमेंट द पर्सन इज बॉर्न हिज डेथ डे इज फिक्स। वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। होता ये है कि वो जो आपका पूरा कोटा जो है 2 बिलियन का, वो चाहे आप 10 साल में ले लो, जो लोग जो हैं जो गंदे मंदे काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी है ये जो सांस लेना है और सांस अंदर ले जाना है, ये सारा का सारा इरेगुलर हो जाता है। जो उन्होंने ये एक्शन जो 1 मिनट में 20 टाइम करना था, वो 1 सेकंड में कर देते हैं। तो उनकी वो टोटल तो एकदम कम हो गया। दैट इज व्हाट इट इज। मैं अपने सांस को, लाइफ फोर्स को मैनेज करना इज अ टेक्निक ऑफ प्राणायाम। प्राण मीन लाइफ फोर्स। Life force. और अपने माइंड को मैनेज करना इज अ टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। सो ये जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, इंडिया की, हजारों साल पहले ऋषियों मुनियों ने ये टेक्निक दे दी है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड में इट वाज स्टोन एज, ब्लैक एज, वो जो पार्ट ग्लोब का है जिसको हम इंडिया कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, अपने मदरलैंड कहते हैं, वहाँ ऐसी फिनोमिनल चीज हो चुकी है। उन्होंने इतनी रिसर्च करके ऐसी एक बात दे दी है कि भाई माइंड को मैनेज करना तो मेडिटेशन करो, अगर अपनी लाइफ फोर्स को मैनेज करना है देन प्राणायाम करो, right? There are techniques. We will take up that topic at some other time. Yes. So this is called, let me summarize, this is called the Bhavsagar. The multiplicity of our desires is a Bhavsagar. अगर इसको कम करना है तो then we have to manage our desires, reduce them, minimize them. जितनी हो गई, लेकिन ये ओवरनाइट हो गई नहीं कि क्यों नहीं, हमने अभ्यास किया हुआ है 70-60 ईयर इसको मल्टीप्लाई करने का। वो यूज करने का टाइम लगेगा, उसका बस जाने में टाइम लगता है। उसका संस्कृत में एक वर्ड है तप, भाई बड़ी तपस्या का। तप का मतलब है रिगरस एफर्ट, कॉन्शियसली, कि मैनेज करना है। तो उसको उस तप के थ्रू प्रॉमिस टू योरसेल्फ वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड अपने भावसार को सुखा सकते हैं। फिर आपको ईश्वर से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर से आप यही कहोगे, हे प्रभु जो आपने दिया बड़ा दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। ये हम अभी जो हम कहते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, वो एक दिखावा है। कर कुछ रहे हैं, वहाँ 10 मिनट के लिए जाके हम प्रार्थना कर देते हैं, ऐसी चीजें नहीं वर्क करती। तो दिस इज what you asked me and I have explained in detail. So I'm just telling us, I hope everybody is very happy with this explanation. जो क्वेश्चन मैंने किया था प्रोग्राम के शुरू में, तो कितनी अच्छी explanation नरेंद्र जी ने दी है। And here that Narinder ji is, like I said, he's very learned and very gives us such good
things to think about, because एकदम तो ये सब चीजें जैसे कहते हैं नहीं होता, but food for thought and practice करेंगे, because इतने सालों से कर रहे हैं, वही चीज करी जा रहे हैं माइंड को. Mind, you need meditation, you need time to think, you need time to reverse some things. Then only you will be, नहीं तो फिर वैसे ही चली जाओगे जैसे पहले चल रहे थे. मैं उनके बारे में कुछ और कहना चाहती हूँ. यहाँ पे मुझे उनका बायो मिल गया है, मैंने पहले करना था लेकिन मिल नहीं रहा था, अब मुझे मिल गया है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. ये अपडेटेड है, एंड everybody in New York knows him, right? I will say. And his passion and mission is speaking about Hindu holy book, Srimad Bhagavad Gita, to provide guidance and insight how to calm down and be quantitative and empathetic towards yourself as well as your fellow human beings. He makes many presentations in the capacity of moderator and panelist. He has profound conviction in the elitist teachings of the Bhagavad Gita and thereby will share its wisdom with all in the American society, students and parents alike. His speeches have been heard by universities, colleges, high schools, churches, temples. He is the chair of the Meditation Forum at a New York non-profit organization where he holds the co-chair position. He says meditation is an art, a yogic technique, and a GPS to guide the individual as well as society to seek inner peace and outer prosperity. He is currently a board member of Long Island Multi-Faith Forum. His recent presentations made at North Shore LIJ was end-of-life care of patients of Hindu faith from perspective of Srimad Bhagavad Gita. As part of the system chaplaincy grand rounds, he made a presentation on Hinduism to the hospital staff at Northwell Health, exploring Hinduism. And of course, he also has Sujata ji with him many times. She's also his co-chair, and when he does a presentation. But ये multi-faith का जो है, I am very interested in that. मैं भी एक बारी मैं गई भी थी. नरेंद्र जी, next time कभी ऐसा हुआ, let me know. I would like to join or at least be a listener. Like to listen, and this kind of thing मुझे अच्छा लगता है. Because then you see all kind of different. I went to one of them and उसमें सारे rabbi भी था, गुरुद्वारे के भाई जी भी थे, हिंदू प्रीस्ट भी थे, क्रिश्चियन, देयर वर सो मेनी, कैथलिक, एंड कोई इवेंजलिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, ऑल डिफरेंट टाइप्स, एंड हमारे मुस्लिम भाई भी थे, एंड ऑल आई थिंक जैनिज्म के भी थे मेरे ख्याल. सो देयर वर लॉट ऑफ religions together, they're all sitting together, everybody eating together, बाद में थोड़ा snack भी देते हैं, and this is all in the masjid में था, I think in Westbury में. Yeah, Westbury. Yeah. Very good place, very nice masjid, and a lot of people were there, and they gave you a nice lunch and everything too. Also, they invited me a couple of times. But ये जो थी ना multi-faith वाली, a really special invitation came, and I said, you know what, I should go, and I was really very happy that I went. So कभी ऐसे चांस आप अपने टाउन में अगर आपके फ्रेंड्स के किसका हुआ, तो please all of you should go and become and listen to what are this, but different religions, they talk about the same topic or discuss something, so Narinder ji बता सकते हैं next time कभी होगा, let us know, Narinder ji. Form of not tolerance but acceptance. Yes. We meet not to change anybody, Right. but to appreciate each faith at their own roots, because they are saying the same thing. The sun is one. Nobody says the sun is 20. The earth is round. Nobody says it's flat. So those universal truths are discussed in this total spirit of acceptance, not tolerance. So that is the motto of that forum, Multi-Faith Forum. There are 10 faiths practicing faith on island, and they periodically meet and deal and discuss in a very respectful manner. And as I said, people are receptive. They don't criticize. There's no criticism.
You like this, okay, you like this, but what you are saying, this is what I am saying. So when they understand, when they, it could be a different angle, because life is an angle. आप किस एंगल पे खड़े हो, लाइफ आपको वो ही दिखाती है. आप अपना एंगल चेंज कर दो, लाइफ आपको दूसरा कुछ दिखाती है. तो ऑलवेज रिमेम्बर लाइफ इज एन एंगल, एंड चूज द राइट एंगल. राइट एंगल पे आप खड़े तो जिंदगी बिल्कुल आपको सीधी लगेगी. अगर आपका एंगल गलत हो गया तो इट्स ए प्रॉब्लम. But this forum, multi-faith forum of Long Island, luckily I am one of the directors of this program with the board of directors, and it is running very smoothly, and a lot of information is exchanged on the platform. There are panel discussions and moderation. So it is a very unique, it's very unique. There's no criticism, there's appreciation. Right. That's really And good. that is why we use the word not tolerance, but acceptance. Acceptance. Open heart. Open your heart and look. Open the windows of your mind. There is another window also. So that Yes, way the yes. thinking changes. Yeah. जैसे religions के different heads हैं, they should also meet and have this world में होना चाहिए. I mean, this is a Long Island छोटी सी, I mean, हमारा छोटी सी community है इधर Long Island में. Yeah. We do it, but it should be on a worldwide world. They under the concept of UNO, United Nations, Yeah. there is a organization who is at the magnified global form. उसमें सारे faith हैं. I had the opportunity to attend a couple of them, and it is the same concept. दुनिया जैसे अभी recently था, the Prime Minister of India, Narendra Modi, he initiated the concept of yoga. Right. So there were 125 countries doing yoga at the same place, Yeah. representing their own countries. Yes, I saw that. So that is why how the peace can be attained, not with fights and planes and missiles. No, this is the technique. This is the technique. This is the technique, right? So, बिल्कुल. हाँ जी. So this is the way it should be around the, अगर सारे people will start appreciating them, उनकी country में अगर लोग उनकी बात सुने, there will not be this kind of a war going on, like Yeah. You are right. Yeah. Ukraine में देखो कितने 1.5 years, 1.5 साल हो गया, and the place is like totally ruined. Children, Totally. a lot of orphans. Children का कितना affect हो रहा है, like little orphans. I feel very bad when older people and little kids, when the parents are not there anymore. तो उनको कौन देखेगा? पूरी life पड़ी है बच्चों की. That's so painful to listen to all this. So when I listen to all this, I get very, very emotional, very upset. But क्या कर सकते हो? What should we do for those little kids? And anyway, बाकी world में भी हैं बच्चे बहुत, they suffer. They're orphans, or they go to orphanages. कोई उनको adopt करता है, कोई नहीं करता. Right. Yeah. So I would suggest that it was a very nice. yesterday there was the India Independence Parade. Yeah, I went there. I was also there, and it was a very profound display of the national unity. Yeah. So let us sing one song. एक मैं गाता हूँ, आप एक गाना, and we will conclude the program. We have 3-4 minutes, right? नहीं, आप करो, please. देश की धरती, I know, मेरे देश की धरती, हाँ, सोना उगले yeah, please, आप जो भी गाओ, let's listen to you. मैं different आपको बताता हूँ कि भाई इंडिया का आपको इसमें सब कुछ आता है, सारे स्टेट्स आएंगे. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है.
यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, घाट घाट पे बाट बाट पे यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली X mode. ये गोलियां। एक तरफ बंदूकें धन धन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। नौ राजपुताना, देखो अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा, बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमनियां अंगारों पे। बोल रही है कन कन से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अब महाराष्ट्र। हाँ, देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। अब बंगाल देखो, ये बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बता है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ब्यूटीफुल, वंदे। ब्यूटीफुल। मतलब बेस्ट पार्ट है कि आपको सबको मुंह जुबानी याद है, मैं यही देख रही हूँ। Okay, that's wonderful. That is really, really, really wonderful. कि आपको you can sing so well and you remember all the words. ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार Thank you. we did have a very good celebration yesterday in Long Island. Actually ये इंडिया डे परेड पहले मैनहट्टन में सिर्फ होती थी, बाद में स्प्रेड आउट, नाउ इट्स गॉन टू न्यू जर्सी में भी होती है, ऑल ओवर द प्लेस, क्वींस में, लॉन्ग आइलैंड, सो नासौ काउंटी में कल थी, and it was attended by a lot of people came. I was in one of the floats. It was very hot, but I was in the float and they were singing all Deshbhakti Bhakti के गाने गाए थे. So that was really, really very nice yesterday. I enjoyed it. तो आपने मेरे से का भी गा दिया, बहुत अच्छा किया। Thank you. मैं next time गाऊंगी, but it was very, very nice. I was admiring you that उनको सब words याद हैं. That's admirable, really. I'm unbelievable. तो अभी हमारा टॉपिक जबरदस्त था। अब अगर लेट आए हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम को शुरू से सुने, ताकि you'll get all the benefit of the program and the teaching of Narinder ji. Like I just explained, इतने बड़े वो इतने organizations के इंचार्ज हैं, and he's a part of so many different places that he goes off to different places for meetings, and Bhagavad Gita के बारे में is very, very well known all over Long Island and all over the community. Is very well known. So it's a pleasure and a benefit that he came today, and he comes, willingly, and very nice of him to do that. So I want to everybody should enjoy and listen to him. If you came late, like I said, please beginning में सुनना.
So I want to say thank you to all of you for joining today, for listening to this topic. Bhav Sagar जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से explain किया है. If we start following that, it's going to benefit us. Nobody else except you yourself. ठीक है? नरेंद्र जी मैंने ठीक बोला? बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी तरह समराइज किया। So आपको भी thank you, धन्यवाद. Thank you, Veena so ji, much. and thank you, and God bless you. Continue doing the good work for the community, and it is a law of nature. What we give comes back to us. Yeah. Continue giving; it will come back to you in many multiform form to you. God bless you. Thank you so much. So I want to say bye to everyone. Have a wonderful Monday. We'll see you back here again on Wednesday. We're having Sargam Kapoor back here. She's going to be singing some, well, actually it's a Rakhi day also. Thoda Rakhi ke bhi ek do, and then some Bollywood songs. So she'll be here to entertain us. So thank you so much. She is related to me. I know आपके बाद में उसमें लिखा था. Yes. Oh, that's good. सरगम के जो फादर हैं, we are related. They're in Minneapolis. Anyway, so she'll be back here on Wednesday, so आप जरूर आना. And बहुत अच्छा गाती है, और Friday को हमारा शुक्राना है. I think it's going to be a DDJ शुक्राना this time. So we're going to have a few of us to do that. Sing some bhajan या शपथ जो भी है हम करेंगे. Thank you so much. Have a wonderful Monday, all of you, and enjoy the day. Bye-bye. Bye.